morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. So we have discussed the simplex method in the last lecture and solved a problem that is based on two variables. Today I'm going to take a problem that consists of three variables, and we will solve it using the simplex technique. Procedure will be same. First thing is we have to check whether the problem is given in standard form or not. If it's not in standard form, then the first step is to convert the problem into the standard form. Standard form में convert करने के लिए we have to check that all the inequalities जो right hand side होगी that consist of positive terms. अगर वो नेगेटिव है तो हमें उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा. एंड वन मोर थिंग, जितनी भी इनइक्वालिटीज गिवन होगी प्रॉब्लम में, वी हैव टू कन्वर्ट दोज इनइक्वालिटीज इनटू द इक्वालिटी बाय एडिंग स्लैक वेरिएबल और द सरप्लस वेरिएबल. तो यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम गिवन है, वी हैव एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज ऑफ z is 3x1 plus 2x2 5x3 subjected to the set of constants x1 plus 2x2 plus x3 is less than equals to 430. 3x1 plus 2x3 is less than 460. And the third inequality is x1 plus 4x2 is less than equal to 420. And we have variables x1, x2, x3, non-negativity restrictions. These all are greater than 0. So in order to convert into the standard form, यहाँ पर जो ये values हैं, these all are positive, so no issue. Now next thing is जो ये inequalities given है, मुझे इन्हें equality में convert करना है. So we have to add some variable on the left hand side, that is the slack variable. मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर first step में इसको convert कर रही हूँ. तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, जितने भी वेरिएबल्स ऐड होंगे, दैट मस्ट बी ऐड इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आल्सो. So my objective function will be 3x1 plus 2x2 5x3 0 into s1. तीन वेरिएबल्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे. s3 आपकी आवाज नहीं आ रही है. subjected to x1. वॉइसेस और आ रही है क्या? ऑडिबल है? आवाज आ रही है? प्लीज लेट मी नो. आवाज मेरी वॉइस क्लियर है? ओके फाइन. x1 plus 2x2 प्लस x3, इसमें हमने एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया है
and then this inequality converted into the equality. Same thing in the next inequality. S2 is equals to 460 and x1 plus 4x2 plus S3 is equals to 420, and all the non-negativity restrictions here, S1, S2, S3, these all must be greater than or equal to 0. Now in the next step we have to write down the simplex table. तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, means AX equals to B. तो मैट्रिक्स जो A यहाँ पर है, that consists of all the coefficients. तो मेरे पास टोटल यहाँ पर कितने coefficients हैं? 6. तो फर्स्ट रो में जो इनके वैल्यूज हैं, these are 1, 2 and 1. S1 is 1 and S2, S3, these all are 0. In the second row, coefficient of x1 is 3, x2 is 0, x3 is 2, S1 is 0, this is 1, and in the third row, it's 1, 4, 0, 0, 0, 1. This is x1, x2, x3, s1, s2, s3, and right hand side is 430, 460, 420. Okay. Now the next step, draw the simplex table, and after that we will start our iterations, जिसमें हमें क्या करना होगा, first we have to check कि कौन सा variable enter कर रहा है और कौन सा leave कर रहा है उसके corresponding. This is again the same problem जो हमने last lecture में की थी, only difference वो 2 variables में थी and ये वाली problem 3 variables में. Number of variables यहाँ पे हमारे पास बढ़ गए हैं. तो first column is for the basic variables जिसके लिए हम problem solve कर रहे हैं यहाँ पर. तो हमने यहाँ पर अभी जो variables add कर रहे हैं वो हमारे हैं S1, S2, S3 in the initial iteration. Effectively we have to find out the optimal solution, कि इसका solution optimal exist करेगा या नहीं करेगा. वो conditions भी मैंने आपको बताई थी कि optimal solution कब exist करेगा. तो हमें values यहाँ पर निकालनी है x1, x2 and x3 की, कि किस पर जो function है, ये जो problem है वो मुझे optimum solution provide करेगा. So initially जो मैं start कर रही हूँ, I'm starting with all the variables which we have added by changing the inequalities into the equality. So basic variables here are S1, S2 and S3, and the cost of these variables is 0, which is we already mentioned in the objective function, and XB, this is the column for the solution variables, and this is 430, 460 and 420. Now टोटल यहाँ पर हमारे पास 6 वेरिएबल्स हैं. सो जो ये मैट्रिक्स हमने लिखी है यहाँ पे, सेम एंटर द मैट्रिक्स इन द सिंप्लेक्स टेबल.
So first column is for x1, this is for x2, x3, x4, x5 and x6. x4 is corresponding to s1, this is corresponding to s2 and this is corresponding to s3. Now enter the complete matrix in this simplex iteration. This is 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1. You can check that the जो भी यहाँ पर बेसिक वेरिएबल्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर मैट्रिक्स बेसिस मैट्रिक्स होगी दैट मस्ट बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो S1 S2 S3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी यहाँ पर मैट्रिक्स है जिसको हम बेसिस मैट्रिक्स बोलते हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. और हर इटरेशन में यही होना चाहिए. जो भी एलिमेंट्स जो भी वेरिएबल्स हमारे बेसिक वेरिएबल्स के हों, वेदर वो एंटर होने के बाद एग्जिट हो रहे हों, जो भी एंटर एंड एग्जिट हो रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होगी वो बेसिस मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए. So this is 3 1 0 4 and 2 0. And last column is 4. ये जो कॉलम होगा वो होगा मिनिमम रेशो. मिनिमम रेशो मीन्स xb by xk. Okay, so z is equals to cbxb and the value in the first iteration it's 0, obviously 0 into 430 plus 0 into 460. This is 0. Now we have to find the del j. del j मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इवेल्युएट करना सिखाया था कि del j कैसे इवेल्युएट करते हैं. del j is equals to cb minus xk. del j जो होता है हमारा zj minus cj and zj is cbxj minus cj. cj means जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यूज गिवन है. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर है 3x1 2x2 5x3. so this is 3 2 5 and 0 0 0. फर्स्ट इटरेशन में जो डेल निकल कर आएगा हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं डेट कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिव साइन. तो आप चेक भी कर सकते हो इवैल्यूएट करके और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. तो अगर आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो मल्टीप्लिकेशन जो मैं del 1 निकाल रही हूँ, del 1 इज cbx1 minus c1. so it's equals to cb means this is 0 0 0 multiplication with 1 3 1 minus 3. so 0 multiplied by 1 plus 0 multiplied by 3 plus 0 multiplied by 1 minus 3. so we will get minus 3 here. in the same way जब मैं del 2 evaluate कर रही हूँ del 2 evaluate कर रही हूँ तो इस पूरे कॉलम की मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम. तो वी विल गेट अगेन 0 minus 2. दिस इज minus 2. अगेन दिस इज 0 की मल्टीप्लीकेशन इस थर्ड कॉलम से कर रहे हैं. वी विल गेट minus 5 एंड दीज ऑल विल बी 0. सो इन द फर्स्ट इटरेशन डेल्स की वैल्यू वो होगी जो सीजे के जो भी सीजे यहाँ पर गिवन है विद द नेगेटिव साइन. इट विल ऑलवेज बी कम विद द नेगेटिव साइन. तो now in the next step we have to see कि which one is the most negative del j, because हमें यहाँ पर एक वेक्टर लीविंग निकालना है और लीविंग के कॉरेस्पॉन्डिंग एंटरिंग निकालना है और एंटरिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर लीविंग कौन सा होगा. तो जो मोस्ट नेगेटिव del j हमारे पास यहाँ पर है that will be my entering vector. now the most negative is the -5. this is and this is the entering vector.
this minus 5, and the value of k is 3 here because this is the third column. So k is 3 means हमें जो मिनिमम रेशो निकालनी है, मिनिमम रेशो विल बी xb by x3 means this is 430 by 1, this is 460 by 2 and this is 420 by 0. तो हम इसको छोड़ देंगे. We will take only the values that are नेगेटिव भी छोड़ देना है और 0 से भी जो डिवाइड होगा उसको हमें लीव कर देना है. सो इट विल बी 230. नाउ मिनिमम रेशो एंटरिंग वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो मिनिमम रेशो होगी वो वाला हमारा जो रो है दैट विल बी लीव. तो x3 एंटर कर रहा है और s2 लीव कर रहा है और इसके कॉमन पे जो एलिमेंट होता है वो होता है 2. इनके कॉमन एलिमेंट आ रहा है. So we covered 2 is the key element or pivot element. So in the next iteration ये x3 enter करेगा और s2 लीव करेगा. अब हमें in the next step जो की एलिमेंट होगा उस की एलिमेंट को मुझे 1 करना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं उस सबको 0 करना है. तो इसको 1 करने के लिए मैं क्या करूंगी इन द नेक्स्ट इटरेशन, इस पूरी की पूरी रो को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी. ओके 2 से डिवाइड करने पे ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. दिस इज 0 और फिर इसको 0 करना होगा. दैट विल वी डू इन द नेक्स्ट स्टेप. और उसके बाद वी रिपीट द सेम प्रोसीजर अगेन. तब तक प्रोसीजर को रिपीट करना है जब तक कि जितने भी डेल्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नहीं आ जाते. सो सेम प्रोसीजर वी आर गोइंग टू रिपीट इन द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड. इज दैट क्लियर टू यू? ये तो समझ में आया है कि कैसे टेबल पूरी जनरेट हो रही है. आयुष आपको आवाज नहीं आ रही है? कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज आ रही है, कुछ बोल रहे हैं नहीं आ रही. मेरी तरफ से द वॉल्यूम इज कंप्लीट, पूरा फुल है. वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? अक्षिता, शीतल मैम बीच बीच में ब्रेक होती है वॉइस. यूजिंग द लैन और मैम आ रही है. अगर आप कितने लोगों को आ रही है? अक्षिता आ रही है? अक्षिता एंड शीतल एंड शिव? यस मैम. यस मैम आ रही है. मेरी तरफ से कनेक्शन में कोई इशू नहीं है. अगर या तो सबके साथ प्रॉब्लम होती है, अगर होती तो ठीक है. अगर किसी को नहीं आ रही है तो आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, प्लीज आप आ रही है. ठीक है. और अदरवाइज अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं करे हैं, मैं उसको आज या कल में अपलोड कर दूंगी, आप देख लेना दोबारा से. ओके सो द फर्स्ट इटरेशन इज क्लियर टू यू? नो मैम. Is it clear or no? और अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है सो प्लीज दोबारा से आप इसको वीडियो को देखना है, आपको स्टडी करना है, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द थिंग डिपेंड्स ऑन द सिंप्लेक्स टेक्निक. यही हमें बाद में आगे भी यही चीज यूज करनी है. सो इट मस्ट बी वेरी क्लियर कि कैसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कैसे इस टेबल को हमें ड्रॉ करना है. ठीक है. तो मैं अभी वापस से नहीं समझ में आ रहा है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द सेकंड इटरेशन. वही चीज हम सेकंड इटरेशन में रिपीट कर रहे हैं. फर्स्ट इटरेशन में मुझे पता चल गया है कि मेरा कौन सा वेक्टर एंटर कर रहा है और कौन सा लीव कर रहा है. सो x3 एंटर कर रहा है और x2 लीव कर रहा है. अब मैं वापस से टेबल ड्रॉ कर रही हूँ.
दिस इज S1, S2 की जगह अब आ जाएगा X3 एंड S3। ये टेबल कंटिन्यूइंग में, अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्रेक हो गया है, कंटिन्यू में आप ड्रॉ कर सकते हो। S1 का कॉस्ट जो है 0 है, X3 द कॉस्ट ऑफ X3 is 5, it's in the objective function, and S3 is 0, and this is now। अब मुझे क्या करना है, इस की एलिमेंट को 1 करना है, और इस की एलिमेंट को 1 करने के लिए मुझे इस पूरी रो को डिवाइड करना होगा 2 से। तो 2 से डिवाइड करने पे जो यहाँ पर वैल्यू होगी दैट इज 230। दिस इज 3/2, 0, 1, 0, 1/2, 0। ओके, सो Z is equals to again CBXB। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब जो भी यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एक तो 0, इट्स ऑलरेडी 0, और इसको मुझे 0 करना पड़ेगा। की एलिमेंट वाली कॉलम में की एलिमेंट मस्ट बी 1, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। तो इस वाली रो में ऑलरेडी इट्स 0 है, तो इसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना है बिकॉज इट्स ऑलरेडी 0। तो मैं ये वाली रो को एज इट इज लिख रही हूँ, 420, 1, 4, 0, 0, 0, 1। अब मुझे इस वाली रो को, इस एलिमेंट को क्या करना है, इसको 0 करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम राइट डाउन, ये वाली रो लिख रही हूँ मैं पहले। जिस वाली रो में मुझे 0 करना है, तो फर्स्ट 430 हमने लिखा, फर्स्ट राइट डाउन द रो जिसमें मुझे एलिमेंट को 0 करना है। सो 430, 1, 2, 1, 1, 0, 0। देन वो वाली रो लिखनी है जिसकी एलिमेंट को मैंने 1 किया है। तो ये मैंने लिख दिया 230, 3/2, 0, 1, 0, 1/2, 0। और कोई ऑपरेशन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट सिंपली आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट, एंड यू कैन सी दैट कि ये जो मेरा एलिमेंट है वो सिंपली सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 हो रहा है। तो दिस इज 200, 1 minus 3/2 is -1/2, 2, 0, 1, -1/2, 0, and I'm going to write down these values in the simplex table. Now की एलिमेंट 1 हो गया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर हो गए हैं 0, and you can also check S1, S3, X3 and S3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर इस वाली मैट्रिक्स में जो बेसिस जनरेट हो रही है वो आइडेंटिटी है। S1 के कॉरस्पॉन्डिंग X3 एंड S3, S1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम है 1, 0, 0, उसके बाद X3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम है 0, 1, 0, देन 0, 0, 1। सो इन तीनों को कंबाइन करके द मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मेरी कैलकुलेशन यहाँ पर सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस इज Z इज इक्वल्स टू CBXB। This will be 1150. Again, repeat the procedure, find out the del J. del J evaluate करना है
और डेल जे वैल्यूएट करने के लिए हमारे पास ये वैल्यूज यहाँ पर चली रही हैं. दिस इज द वैल्यूज फॉर CJ 3 2 5 0 0 0. तो अगेन क्या करना है, डेल 1 के लिए ये इस पूरे कॉलम की मल्टीप्लाई इससे करना है एंड देन इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो 0 इंटू -1/2 प्लस 5 इंटू 3/2 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 3, 15/2 minus 3, we will get 9/2. In the same way, 0 into 2 plus 5 into 0 plus 0 into 4 minus 2. So this is minus 2. 0 multiplication with 0, 5 minus 5. This is 0. Again, we will get 0 multiplication 1 plus 5 into 0, 0 into 0, this is 0. And 0 minus 1/2, 5/2, this is 5/2, and this one is again 0. Now we will see that again मेरे पास एक नेगेटिव डेल जे आ गया है. We have to stop the iteration जबकि सारे के सारे डेल्स जो हैं वो पॉजिटिव आ जाए. तो जो एंटर वेक्टर करेगा यहाँ पर, ये एंटर करेगा. नाउ मिनिमम रेशो होगा यहाँ पे XB बाय, दिस इज द कॉलम फॉर X2, वैल्यू ऑफ K इज 2. मिनिमम रेशो यहाँ पर हो गया. फर्स्ट वैल्यू इज 200/2, 200/2, 200/0, इसको छोड़ देंगे, and 420/4, this is 105, this one is 100. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मिनिमम रेशियो है. तो वेक्टर जो यहाँ पर लीव करेगा S1 लीव करेगा और की एलिमेंट विल बी, की एलिमेंट इज 2 now. So in the next iteration you will see that ये एंटर कर रहा है और ये लीव कर रहा है. मतलब S1 की जगह अब जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास X2 in the next iteration. So I am again going to repeat this procedure. S1 की जगह अब जो वेक्टर एंटर कर गया है टेबल में वो कर गया है X2. रिमेनिंग विल बी सेम S3. नाउ द कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट इज X2 की जो कॉस्ट है इट्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज 2. X3 मेरे पास 5 ही रहेगा और ये 0 रहेगा. अब क्या करना है, ये जो की एलिमेंट हमारे पास है, की एलिमेंट को मेरे को 1 करना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये जो दोनों एलिमेंट है ये 0 होने चाहिए इन द कमिंग इटरेशन. तो इसको 1 करने के लिए मैं क्या करूंगी, अगेन आई एम गोइंग टू डिवाइड द होल रो बाय 2. तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी आई एम गेटिंग 100. This is minus 1/4, 1 0, 1/2, minus 1/4 0. सेकेंड रो एज इट इज रहेगी. इट्स बिकॉज 0 है तो कोई चेंज ही नहीं करना है, तो ये हमने ऐसे ही लिख दिया है 0 1 0 1/2 0. थर्ड रो में अब यहाँ पर 4 है और मेरे को 0 करना है. तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ थर्ड रो मेरी होगी 420 1 4 0 0 0 1. अब इसको 0 करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, की एलिमेंट वाली रो को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ एंड देन सब्ट्रैक्टेड. तो की एलिमेंट मैंने इसमें जनरेट किया था. दिस इज माय, यहाँ पर प्लीज म्यूट योर माइक. 400 multiplying by 4, this is -1.
4 0 2 -1 0 and subtracting, so we will get this is 20 2 0 0 -2 1 and 1। तो ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने एंटर कर दी हैं। जो भी ऑपरेशन लगाना है मुझे उस रो में लगाना है जिसमें की एलिमेंट मैंने 1 किया है। 0 0 -2 1 1। अगेन रिपीट द प्रोसीजर। वी हैव टू चेक कि डेल्स की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ गई हैं या नहीं आ गई। अगर आ जाती हैं तो वी हैव टू स्टॉप द इटरेशन, अगर नहीं आती है तो हमें इसी प्रोसीजर को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। दिस इज 2 × 100 + 5 × 230 and 1350। फाइंड आउट डेल जे। डेल जे मीन्स इस पूरे कॉलम की मल्टीप्लाई इससे करनी है एंड -3 सब्ट्रैक्ट कर देना है। So 2 multiplication with -1/4, 5 multiplication with 3/2 -3। तो इसको इवैल्यूएट करके आ गया है हमारे पास 4। 2 multiplication with 1, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -2 is 0। In the same way 2 multiplication with 0, 5 multiplication with 1, 0 into 0 -5, again 0 and 2/1/2, 5/0, 5 multiply by 0, 0 into -2, this is again 0, 1 minus, this is 1 and -2 into -1/4 plus 5 into 1/2, so this is 2 and in the last one we will get 0. So in the third iteration you see that all the del's are greater than or equal to 0, so we get the solution here. Just write down, since all del j's are greater than equals to 0, so corresponding value of x2 की जो यहाँ पर वैल्यू होगी that is 100, x3 की वैल्यू मेरे पास आ गई है यहाँ पे 230 and x1 is not present in the last iteration, so value of x1 is equals to 0 and maximize of z is equals to 1350. So this is the optimal solution using the simplex method. And कभी कभी प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन अनबाउंडेड भी होता है, उसकी कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी। अगर किसी भी डेल जी के कॉरस्पॉन्डिंग सारी की सारी वैल्यूज या तो 0 है या तो नेगेटिव है, तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन होता है दैट विल बी अनबाउंडेड। Is that okay? So we have completed our simplex method and in the next class we will start dual simplex or the two-phase method for solving the problem. किसी को कोई प्रॉब्लम है so you can ask me. Yes, any problem with the simplex technique? No response from your side. Yes or no तो बोल सकते हो। ओके सो मैं आपके पास जो भी बुक मटेरियल है, डू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सिंप्लेक्स। एटलीस्ट 5 प्रॉब्लम्स अपने आप से करो एंड इन द नेक्स्ट क्लास 2-phase मेथड हम करेंगे, बट उससे पहले उसमें आधा पार्ट सिंप्लेक्स का ही करना है। ये प्रोसीजर तो फॉलो करना ही है, उसी के आगे का एक्सटेंड है, तो यहाँ तक कर लो इसको और फिर जो भी डाउट हो आप दोबारा से पूछ सकते हो।
Is that okay?